ناظرین، میں محمد زین العابدین ناہید DNA نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بسلسلہ عقد زہرا کے موقع پر اردو روزنامہ بے مثال کی 10ویں سالگرہ علی گلشن نور خان بازار حیدرآباد میں منائی گئی۔ جناب میر ہادی علی صاحب مدیر روزنامہ بے مثال، جناب صلاح الدین لودھی صاحب TRS لیڈر، جناب محمد زین العابدین ناہید صاحب مدیر روزنامہ دکا نیوز انالیسس نے حاضرین محفل سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ساجد صاحب جرنلسٹ، متین صاحب جرنلسٹ، جناب عرفان صاحب و دیگر موجود تھے۔ آخر میں حیدر علی حیدر صاحب، عرفان صاحب، کمسین شاعر سلمان اور میر ہادی علی صاحب نے منقبت پڑھی۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کی تفصیلی رپورٹ۔ جس نور نے خیام کیا سوائے فاطمہ کے پیغمبر نے احترام کیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ارے حیدری، ارے خیبری، ارے بوزری، ارے پنجگنی، وجہ حسن دولہا علی زہرا، دلہن کیا عقد ہے طلعت فگن دولہا علی زہرا، زیبا دلہن کی ہزارے رسولوں کا شرح محمد و آل محمد۔ ابو طالب کا بیٹا فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے، علی سورج محمد و آل محمد۔ علی مردوں کو جلائے، ابو طالب کا بیٹا نہ سب کچھ ایسا پایا، محمد و آل محمد۔ نہ سب کچھ طالب کا بیٹا غدیر خون کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا اللہم صلی علی محمد۔ آل محمد۔ اپنے شہزادی کونین ہے، اور آپ جیسا کہ پیش رو قصیدہ خان حضرات سے عقد ثانی کے قصائد فرمائے تھے۔ خوش نما حسین سے ہے گھر میرا، خوش نما حسین سے ہے، علی سے ہے یا حسین سے ہے یا علی سے ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام و شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کے صدقے میں یہاں پر تمام موجود حضرات کے دلی مقاصد کو بدلا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں بالخصوص کرونا کی بیماری کی وجہ سے، پھر دوبارہ زیارت کربلا معلیٰ، زیارت حضرت امام رضا غریب علیہ السلام مشہد مقدس، تمام 4 معصومین کی زیارتوں کو پھر سے دوبارہ ہمارے کو عطا فرمائے۔ مسلسل خاموشی کو موت سمجھیں گے چمن والے، مسلسل خاموشی کو موت سمجھیں گے چمن والے، اسیران قفس کو مائل فریاد رہنے دو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہمارے اخبار کے اس سرنامہ شعر سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں میر ہادی علی، چیف ایڈیٹر اردو روزنامہ بے مثال، آپ سے اپنے اخبار کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کر رہا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا صحافتی سفر تقریباً 35-36 سال میں داخل ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنے کالج کے زمانے کے ساتھ سے ہی، جب کالج میں تھا تو اردو میگزین کا ایڈیٹر تھا، اور سالانہ فنکشنز کے موقع پر
मुझे ज़ोर क़लम से तमाम साथियों में से सेलेक्ट किया जाता था। उसी शौक़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने सहाफ़त को अपनाया था, क्योंकि मैंने सहाफ़त और सियासत दोनों को एक साथ लेकर अपना सफ़र जारी किया। चुनांचे एक तरफ मैं सहाफ़त के ज़रिए से सबसे पहले हफ्त रोज़ा इस्तक़बाल का आगाज़ किया, जो तकरीबन 37 साल उस हफ्तावार के हो गए। लेकिन हफ्त रोज़ा अखबारात को नाजरीन हफ्ते में एक बार आने से इंतज़ार करते और तमाम तर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पुराने पड़ जाते थे, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक रोज़नामे का आगाज़ करूं। चुनांचे मैंने इस्तक़बाल रखते हुए रोज़नामे बेमिसाल टाइटल को हासिल किया। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सोच, फ़िक्र, सहाफ़त, सियासत जिस तरह से अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, उसी तरह से मैंने अपने अखबार का नाम पहला जो रखा, इस्तक़बाल रखा। वो मेरे जहन में ये आया, मेरे मोहल्ले नूरखा मज़ार में 16 रजब की शाम को बहुत ही शानदार तरीक़े पर सारी रात इस्तक़बाल मौलाए कायनात संदल का होता है, तो उसी इस्तक़बाल संदल के नाम से मैंने इस्तक़बाल टाइटल हासिल किया। उसके बाद मैंने सोचा कि जब रोज़नामा अखबार का नाम जब सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा RNI डिपार्टमेंट को, तो उस वक्त भी मेरे को ये ख्याल पैदा हुआ कि उर्दू डेली अखबार का नाम भी एक ऐसा नाम हो जो सब में, यानी किसी दुकान पर आप अखबार हासिल करने जाए तो अगर आप बेमिसाल अखबार दो भाई, वो तो साथ में रहने वाले चौंक के एकदम, अरे कौन सा भाई, पूरे ज़बानों में बेमिसाल अखबार, हाँ ठीक है। तो उसी तरह मैंने बेमिसाल अखबार का टाइटल हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मेरे, आज 12 जुलाई को मैं पेपर स्टार्ट किया था 2012 में, और आज मुझे अल्लाह के फजल से 12वें साल में मैं कदम रख दिया हूँ, वो 10वें साल में कदम रख चुका हूँ। और इसमें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स और एडवर्टाइज़र्स का भी बहुत साथ रहा। यूँ तो आज हम देख रहे हैं तमाम छोटे अखबारात वाले किन मुश्किल हालात से, किस पुराशोभ दौर से गुज़र रहे हैं कि एक तरफ लेबर प्रॉब्लम और अखबार का निकालना प्रॉब्लम, और अखबार छापने के बाद अखबार की मार्केटिंग का प्रॉब्लम। ये जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो छा गया है, उसकी वजह से प्रिंट मीडिया पर काफ़ी असर पड़ रहा है, और तमाम तक अखबारात के मुदीरान इस वक्त बहुत परेशान हालात से गुज़र रहे हैं। वो एक परेशान नहीं है, एक अखबार का एडिटर या एक अखबार का मुदीर या एक अखबार का पब्लिशर परेशान नहीं होता है, लेकिन उसके साथ जितने मिशनरी, कंप्यूटर ऑपरेटर हो या प्रिंटर हो या मशीन मैन हो, ये सब को परेशानियों से गुज़रना पड़ रहा है। इसके लिए रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमतों को भी चाहिए कि इनके प्रॉब्लम्स को जाने, ताकि नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन नाहिद आपके चैनल से आज बेमिसाल की एक बेमिसाल कामयाबी पर, जो 10वीं कामयाबी हम शुमार कर रहे हैं, उस पर मेरे देराना रफ़ीक हादी अली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चूँकि इनकी जस्तजू और जिद्दोजहद की वजह से आज अखबार इस पैमाने पर पहुँच चुका है। क्योंकि 2 साल से हमारी TRS गवर्नमेंट एक पैसे का भी इश्तिहार हमें मैसर नहीं कर रही है। क्योंकि मैं ख़ुद भी एक अखबार का मुदीर हूँ, इसलिए मैं इससे बखूबी वाकिफ़ हूँ। और चूँकि हादी अली साहब पहले उनको इस्तक़बाल के नाम से मशहूर किया गया, क्योंकि उनका पुराना अखबार जो वीकली था इस्तक़बाल था, तो आज कोई उन्हें जानते हैं तो हादी अली साहब इस्तक़बाल कहते हैं। मैं TRS गवर्नमेंट से अदबन ये इल्तिमास करता हूँ कि वो हमारे अखबारात को इश्तिहारात जारी करें, चूँकि अखबारात अब वो पैमाना नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया है, जिसे कहते हैं गूगल बाबा की वजह से हमारा मार्केट से अमल दखल ख़त्म होते जा रहा है। तो मैं फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे हादी अली साहब का मैं ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस खुशी के मौके पर दावत दी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम।
जी मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी, मैं हल्का असेंबली चारमीनार TRS पार्टी का इंचार्ज हूँ। सेटलमेंट में डायरेक्टर भी था, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया चारमीनार हल्के से। और आज ये जो मौका है बेमिसाल का कि जो 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है, इस मौके पे मैं हादिर अली साहब को दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इनसे 1985-86 से वाकिफ़ हूँ, जब तेलुगु देशम के इब्तदाई दौर में आप पत्थरगट्टी हल्के से इलेक्शन लड़े थे। उसी वक्त मैं भी जो है तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन किया था। और उस ज़माने से मैं देखता हूँ हमारे हादी अली साहब बहुत जद्दोजहद के साथ काफ़ी मेहनत करे। बतौर ख़ास मैं कहूँगा, कंजूसी नहीं करूँगा, शिया कौम के लिए उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि मैं इनके साथ रहा। हम दोनों की मिसाल लोग ऐसी देते कि एक सिक्के के दो रुख हैं, गोया शिया और सुन्नी मिलकर तमाम मसलों के हल के लिए हम नुमाया काम करते हैं। बल्कि मैं इस मुख्तसर ये भी कहूँगा कि हादी अली साहब की तर्जुमानी थोड़ी सी मैं करता हूँ, मैं उनके बहुत अच्छा से वाकिफ़ हूँ। खूने दिल दे के सवारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के सवारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो हमारे दोस्त जनाब मीर हादी अली साहब जो काफ़ी स्ट्रगल करे हैं, कई सियासी जमात से भी वाबस्ता रहे, और मैं इनसे इस मौके पे शिकायत भी करूंगा, जो मैं जायज़ समझता हूं कि आप जो है ना कौम के मामले में थोड़ा पीछे हो गए हैं। आप ज़रा कौम के मामले में भी ज़रा वापस एक्टिव हो जाओ अपनी कौम के ताल्लुक़ से। आप आवाज़ उठाइए, कई मसले हैं, कोई अच्छी आवाज़ उठाने वाला आपकी कौम में आपकी तरह मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है ये जो है ना मैं तरफदारी भी करूँगा, चूँकि आपके साथ मेरे 35-40 साल गुजर चुके हैं। तो आप थोड़ा एक्टिव हो जाओ शिया कौम के मसाइल हल के लिए, ना सिर्फ शिया बल्कि और ऑल ओवर जितने भी मसाइल के लिए आप हम पहले की तरह शाना बशाना कदम मिलाकर चलेंगे। इस्तकबाल अखबार जब आप निकाले, जब भी हम इस्तकबाल करे थे, अब बेमिसाल में भी आपको बेमिसाल ही कहते हैं। तो इस मौके पे और मेरे दीगर साथी भी यहाँ सब मौजूद हैं, इस मौके पे मैं दिल की गहराइयों से हादी अली साहब का और दीगर मेरे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हादी अली साहब भी मैं भी उस टाइम के ऊपर हमारे न्यूज़ा दलाने के लिए पूरे अखबारों को जाते थे। सियासत में जिगर साहब थे तो एक इतनी न्यूज़ लगती थी, मुंतखब खबरों में हमारी न्यूज़ लगती थी, तो हम वो न्यूज़ को 2-3 बार पढ़ते थे, बल्कि उसको उठा के रखते थे। और हम अगर वह 2 पेज लिख के देते तो जो है बमुश्किल एक कॉलम की न्यूज़ छपती थी। लेकिन आज ऐसा आलम है, मैं समझता हूँ मोर देन 90% जो जर्नलिस्ट हैं ना उनको एक लाइन, एक सुर्खी नहीं बना सकते वो लोग। ये पूरा माहौल अब जो है, ये व्हाट्सएप की दुनिया जो आई है, इसके अंदर व्हाट्सएप के मौलाना भी शामिल है, व्हाट्सएप के जर्नलिस्ट भी शामिल है, व्हाट्सएप के पॉलिटिकल लीडर भी शामिल है, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के निकले हुए। जर्नलिज्म जो है वो मैं समझता हूँ बहुत पीछे चलेगा। चंद गिने चुने हैं, जैसे आज राविश कुमार है, ऐसे कुछ लोग हैं, माँ बाप है तो यहाँ कुछ है नहीं। और ये लॉकडाउन की वजह से एक जुल्म सितम सभी के समाज के तबकों के साथ जर्नलिस्टों पर भी हुआ कि बड़े अखबारों के अंदर उनकी सैलरी आधी कर दी गई। तो वो अब क्या करेंगे वो लोग? यानी 30 साल 40 साल जो है सहाफत में ज़िंदगी गुजार के अगर आज उनकी तनख्वाह 35-40 हज़ार थी होंगी, तो आज उनको 15,000 से 20,000 रुपये लादी होगी। तो आज सहाफत कहाँ जन्म ले सकती, कहाँ पनप सकती है? तो ये तो मुदीरों को सोचना चाहिए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि हम इसको कैसा डेवलप करना चाहिए इन लोगों को। बस इसके साथ और मैं क्या कह सकता हूँ, खुली किताब है सबके लिए पढ़ने के लिए, सब समझ सकते हैं क्या मैं जो कहना चाहता हूँ।